बहुत तेज असर करती गोली। ओ तब तो 8,000 की थी वो। हाँ अब ये क्या है? अरे वो नहीं होता पटाखे जो होते हैं, शायद वही है। बॉम्ब। ये कहीं असली वाला बॉम्ब तो नहीं है? यहाँ पे बॉम्ब बनाता है शायद वो, अच्छा वही लड़का जो था। माय गॉड, तो मार दिया उसे। वो तो मर गया होगा। गन चलाया तो, भयंकर। तो पूरी तरह से क्रिमिनल बन गया नहीं? कहाँ किसका भाई? गिरा हुआ है। तभी रखी थी उसने गन, उसे मालूम था ना ये काम आएगी। वहाँ पर गिरा हुआ ना, उसके पैर दिख रहे हैं। गिरा हुआ है। ചാലുവഴി ഓടി. ഞാൻ സ്കൂട്ടർ ഒതുക്കി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചേട്ടായി അവനെ പിടിച്ച് തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും വിളിച്ച് अब कैसे बहाना बना रहा है? മൊത്തം പൊടി. ചേട്ടായിയുടെ കാല് ഞാൻ കണ്ടു. उसका एक पैर बचा शायद बस, अच्छा लग रहा है मुझे। उसके चितड़े उड़ गए थे शायद। പേടിയായിട്ട് ഞാൻ കൂടെ പോയത്. ചുമൻ ചേട്ടായി വയലുണ്ടായിരുന്നു. മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസിലും പറഞ്ഞേക്കുന്നേ. पुलिस को स्टेटमेंट देना पड़ेगा। കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആണോ ചവിട്ടിയതാണോ അബദ്ധത്തിൽ വല്ലതും പറ്റിയതാണോ? അബദ്ധത്തിലാണ് അവനും എന്തെങ്കിലും പറ്റണ്ടേ? अब इसने उसे एक्सीडेंट बना दिया। മെടുക്കനാ കൈകൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല. കുടുംബത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ സദ്യ നമുക്ക് പൊക്കാട്ടോ. അവനൊരു പാവമായിരുന്നു. നമ്മളായിട്ടൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കണോ? വേണമെങ്കിൽ തപ്പി നോക്കാം. അതൊക്കെ പോലീസുകാർ നോക്കിക്കോളൂ. ഉപദ്രവിക്കില്ലേ? മരുന്നല്ല ഇല്ലീഗലാ, അതല്ലേ അവൻ മുങ്ങിയത്. ഇൻഫർമേഷൻ സാമിനെ വിളിച്ചു പ്ലീസ് പ്ലീസ്. अब कैसे बोल रहा है? बहाना बना रहा है। സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ജോമോൻ ചേട്ടായി. अच्छा इसका भाई मर गया। मर गया वो। ഞങ്ങളാരും ഇവരുടെ അത്രയും പവർഫുൾ ആൾക്കാരല്ല. मरेगा नहीं, मैं आएंगे थोड़ा बम फोड़ा उसने उस पर। ഓപ്പ എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്? അവനിപ്പോൾ ആരുമില്ല. ഒന്നും മറക്കില്ല, കടപ്പാടുണ്ട്. ഇനിയൊരു ഫൈറ്റിന് ड्रामा कैसे करता है? നേരോ എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല. ജോജി നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുക, അതോടെ പ്രശ്നം തീരും. എന്നെ കോപ്പ ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി. മനസ്സ് സന്ദർഭപ്പെട്ട അവൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ബാക്കി വഴി അവൻ കാണിച്ചു തരും. इसका भतीजा हुआ शायद, अंकल बोल रहा था ना। हाँ तो पुलिस केस नहीं करेंगे क्या? उसके हाथ में गन थी ना शायद, पता नहीं। उस लड़के के हाथ में। കാണാൻ മാത്രം കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്നാണല്ലോ കേട്ടതെന്ന് അവർ. എന്താണ് ഞാൻ പറയുക? നമ്മളവനെ കുറച്ചുകൂടെ കരുതേണ്ട കാരണ. നീ ഇതൊക്കെ ये दोनों हस्बैंड वाइफ है ना?
इसके रूम में यार, भतीजा। इसको पता है शायद। कौन है? तभी यार किसके रूम में है? നീ പെട്ടെന്ന് വരുന്നോ? എവിടെ പോയാലും നീ ലിക്കർ കൈ കൊണ്ട് തൊടില്ല. अल्कोहल को टच नहीं करेगा। उससे वादा लेना। उसने ये कह दिया ना कि वो अल्कोहल की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ ये सब। उसे फंसा तो नहीं किया इसने कहीं? उसी उसी लड़के को जिससे क्लासमेट था। कहाँ चलता था दिमाग में आएगा। ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ടെ ഇരി. കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ പല കഥയും പറയുന്നുണ്ട്. നീയാന്നൊക്കെയാ. उसने बता दिया यही था वो। अच्छा उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇനി കുലുങ്ങിലാട്ടെ. बाइबिल उठा रखी ना उसने। शायद। ഡാ, ഒന്നുമില്ലടാ, ഞാൻ പിന്നെ ആട്ടെ. അല്ല പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു. ഒന്നുമില്ല, डर रहा है क्या? ഞാനാണ് ഉച്ചതെന്നാണ്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. ഇട്ടേക്കാട്ടെ. 3 लाख देगा इसको नहीं? जो जी उस दिन बोला था उसने। फंसता जा रहा है ये। ओ एक दवाई की गोली वहाँ पड़ी हुई है। परेशान हो गया वो। मेरे थिंक स्ट्रेट, थिंक स्ट्रेट. पहले उसने फादर को मारा है, फिर अपने भाई को मारा है। पूरा क्रिमिनल ये तो इन्हें भी मार देगा। ബൈബിളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരുമാതിരിയായിട്ട്. ജോമോൻ ചേട്ടായിട്ട് മരണവും നേരെ കണ്ടതല്ലേ. शक हो रहा है जो जी पे। ആരാ? ശരി ചേട്ടായി. ആ ചേട്ടായി, ओ आ गई फॉरेंसिक रिपोर्ट। ओ അയ്യോ अब भाई ये पुलिस पुलिस आएगी कर। वहाँ। अब फंसने वाला है वो। हाँ फंसेगा तो जरूर वो। रिपोर्ट में तो आना ही था। सिगरेट जला रहा। വന്നോട്ട് മനസ്സി. ജോമോൻ ചേട്ടായുടെ മരണത്തിൽ നിനക്കൊരു പങ്കുണ്ട്. इससे क्यों गहरी बात नहीं, ये तो इसे मार देगा। അടിയന്തരത്തേക്ക് इसको वेंसन बोल रहा। अब तो इसे भी शक होने लग जाएगा। നമ്മൾ അച്ഛനെ വല്ല വിളിക്കണം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. हाँ वो जो गोलियां थी वो मिली ना। ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണോ ഇത്? क्योंकि फंसना तो था ही उसने, क्योंकि उसके गर्दन पे उसने वो मारी थी गोलियां। उसने ये सब कहाँ बताया था? अब इसे जॉर्जी पे शक हो रहा है। इसको पता है ना कि जो उस दिन वहाँ था। उसने बताया था ना उसी लड़के ने। उसी का डब्बा। अब इसे शायद शक हो रहा है। कितनी खतरनाक गोलियां ओ देखो सीधे अंदर धंस जाती है।
उस लड़के को भी शक हो गया, वो किसी ने मारा। तो न्यूज़ में आ गया इसका मर्डर हुआ है। वही वाली गोली उनको। एयर गन पाई गई। ये चीज़ इसे मालूम नहीं थी ना। परेशान हो गया ये। उस बारे में इसने सोचा नहीं होगा बिल्कुल भी। എന്നോട് കുറച്ചു നേരം അവിടെ പെരുന്നാളം പറഞ്ഞു. അവിടെ എന്തോ സംസാരം നടക്കുക. ആ ചേച്ചിരുന്നു. अगर पुलिस एयर गन के बारे में बताएगी तब उसके भतीजे को पता चल जाएगा। ओ पुलिस आ रही है शायद। एक्टिंग तो खतरनाक करता है। हाँ, सबका जिक्र है उसे, सबको पता चल गया इसने मारा। इसने बता दिया। इसने बता दिया। वही गोलियां दिखा रहा उन्हें। ജോമൻ ചേട്ടയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് കിട്ടിയ വിവരം വല്ല അറിഞ്ഞായിരുന്നോ? എൻ്റെ കണ്ണോടാ പാപ്പ. हाँ, इसके पास थी ना सी गन। നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ കണ്ണുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവൂലേ? അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. कैसा हटा रहा ना देखो। നമുക്കെതിരെ ആരോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അവന്റെ തോക്കും കോപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. ആരെ വെച്ചാണ് കോപ്പ്? ചേട്ടാ ഇവനോടൊക്കെ കാര്യം ബോധിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എനിക്കിപ്പോ. കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു വിട്. ജോമോൻ ചേട്ടായി കയറ്റി കൊടുത്തനാ കാലനായത്. എന്നാ നോക്കി പിടിക്കും ഇറങ്ങിപ്പോണ. अब इसी से डर रहे सब। എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ ചേട്ടായി. ഇന്നലെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ. नजदीक से तो बहुत डेंजरस है। എന്നെ ഈ പറയുന്നത് police act. But I don't deserve this. आपका जरूर है। മതി. उसको यकीन हो गया जो जिसने किया है। नाटक कर रहा ना, क्या बोलना चाह रहा अपने भाई से? No. मंजटा तक ഞാൻ बता रहा उसे। അപ്പനെ കുറേയൊക്കെ ബിൻസിക്ക് അറിയാം. ചേട്ടായിക്ക് എന്ന ക്യാഷ് ഉറപ്പിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 800 रुपये देगा वो। ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. കഴുത്ത് കണ്ടിച്ച് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി. कहाँ जा रहा है? अपने कमरे में। क्या कर रहा होगा? मेन विलन यही है मतलब इस फिल्म में, वीकेस्ट पार्ट ऑफ योर स्कल। अब सुसाइड तो नहीं कर रही है? निकाल दे उसने गन। सुसाइड कर रहा शायद लग रहा है मुझे। आ गई पुलिस। वही गन रखी है उसने वहाँ पर।
दिस नॉट माय सुसाइड नोट। सुसाइड नोट दिख रहा है। डाइंग डिक्लेरेशन भेज देंगे शायद उसने 100 रुपये ना। अच्छा मैसेज भेज रहे थे। उन्हें भेज दिया मैसेज। सोसाइटी की वजह से खुद को मार रहा हूँ मैं। हाँ जॉर्जिस पैलेस। സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലേ കണ്ണു തുറന്നേ. जिंदा हो गया। देखिए മോനെ ജോജി ഡോക്ടറാണ്. ആ ധാരാ വന്നിരിക്കുന്നറിയ. अबे ये पैरालाइज हो गया। ഓ വെരി ഗുഡ്. जैसे इसके पापा थे। കാണാൻ വേണ്ടിട്ടേ സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈഎസ്പി अबे സാറ്. पुलिस आ रही है। ओ നമുക്കും പണി. बचा दिया उसे। നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നീ ചെയ്തൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ പറ. उस वक्त अपने पापा का मजाक उड़ाया था उसने। अब खुद ही उस कंडीशन में पहुंच गया। तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। जोजी अच्छी फिल्म कह सकते हैं इसे। अच्छी भी नहीं है, मतलब ठीक है। नहीं मुझे तो अच्छी लगी। इसकी जो कहानी है मतलब नॉर्मल मतलब एक कहानी लग रही है, पर ये है कि इंटरेस्टिंग है ना मूवी। हाँ क्रिमिनल है, मतलब क्रिमिनल माइंड सेट जोजी कैरेक्टर निभा रहे हैं फहद फाजिल। मुझे अच्छी लगी फिल्म। इसकी जिस तरह से इसकी कहानी थी और जिस तरह से एक लड़का जिसका नाम जोजी है और वो किस तरह से एक क्रिमिनल बन जाता है, तो वो चीज़ दिखा रखी है। और उसमें वो किस तरह से वो पहले अपने पापा को मारता है और फिर जब उसके भाई को उस पर शक होता है तो वो अपने भाई को भी मार देता है। फिर क्या क्या बचने के लिए करता है, तो वो सब मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना। और फिल्म की जो लेंथ है वो भी मतलब सही है। ऐसा भी नहीं है कि फालतू में फिल्म खींची हुई हो। ज़्यादा लंबी भी नहीं है फिल्म, बिल्कुल मतलब फिल्म की जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन है वो सही है बिल्कुल। और जब मैं फिल्म को देख रहा था तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगा कि फिल्म बोर कर रही है। ये फिल्म कहीं पे स्लो है या बहुत ज़्यादा लेंथी है, ऐसा नहीं लगा। जो भी कुछ वो दिखा रहे थे उसको देखने में मतलब इंटरेस्ट आ रहा था। और जिस तरह से जो भी कुछ कर रहा था उसको देखने में मतलब एक जो वो होता ना फिल्म ने मतलब बांधे रखा, वो सब देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। और जिस तरह से फिल्म की कहानी आगे बढ़ रही थी तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती आ रही थी। और हम मतलब मैं तो यही सोच रहा था कि ये किस तरह से मतलब अब पकड़ा जाएगा, तो उस बारे में एक क्यूरियोसिटी बनी हुई थी ना कि ये पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा और किस तरह से पकड़ा जाएगा, और जो इसने क्राइम किए हैं क्या उसके बारे में किसी को पता चलेगा। तो वो सब देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे मूवी ना। मतलब फिल्म में इसी की जोजी की कहानी दिखा रखी है। जिस तरह से वो मेन कैरेक्टर वही है ना, क्रिमिनल बन जाता है। मतलब पहले तो मतलब वो ये था कि अपने पापा से परेशान था वो, तो इस वजह से शायद उसने मार दिया अपने पापा को। ये और उसकी बहन उसकी क्या है भाभी थी वो। हाँ बिन्सी। तो ये भी चाहती थी, और वो तो इसलिए चाहती थी क्योंकि उसको वो पसंद नहीं थे होंगे। पर ये है कि भले ही कोई इंसान हमें पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि हम उसे मारते हैं। और वैसे भी वो जोजी के तो पापा ही थे वो। जोजी को तब आया गुस्सा जब
उसके पापा ने उसका गला पकड़ा, क्योंकि जब उसके पापा पैरालाइज हो गए थे तब उस उनके रूम पे गया था, तब उनका हाथ मतलब स्माइल दे रहा था वो एक कि जैसे वो जीत गया हो। हाँ, तो इसलिए इसलिए हाथ उठाया उनका, फिर छोड़ दिया। तब उसके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा चाह रहा है कि मैं मर जाऊं। तो इसमें मतलब ये था कि भले उसके पापा उसे डांटते थे या जो भी कुछ करते थे, पर ये था कि थे तो उसके पापा ही वो, और इस तरह से जो उसने अपने पापा को मारा तो वो एक क्राइम था ना। बाकी दोनों गलत किया भाई उसने। सही थे उसके के अंदर था वो क्रिमिनल माइंडसेट। हाँ, दोनों भाई ने नहीं चाहा कि उनके पापा मर जाएं। वो तो बहुत केयर करते थे अपने पापा की। उसके पापा ने तो मतलब ठीक हो जाना था। वो तो जोजी की वजह से ही वो मारे गए, उसी ने मारा उन्हें। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई, उसी की आई जो उसका भाई मारा गया, तो उस तब पकड़ा गया वो। मतलब पहले वाली रिपोर्ट में पता नहीं उसकी रिपोर्ट आनी भी थी कि नहीं आंधी, पता नहीं पोस्टमार्टम हुआ था उसका क्यों नहीं हुआ था उनके पापा का। हाँ, क्योंकि एक तरह से सभी सोच रहे थे कि वो ज़्यादा अल्कोहल लेते थे। मतलब नहीं, अल्कोहल नहीं, वो मतलब उनकी तबीयत खराबी थी इसलिए वो। हाँ, खराबी थी। पर ये था कि वो जब उसने अपने भाई को मारा ना तब पकड़ा गया वो, जिस तरह से उसने उस गन का यूज़ किया, और वही उसके लिए प्रॉब्लम बन गई थी फिर। और जिस तरह से वो ड्रामा करता था मतलब ऐसा दिखाता था कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। एक्टिंग जिस तरह से करेगी ना। हाँ, मतलब जो कैरेक्टर है जोजी का वो बहुत अच्छे से निभा रखा है। और जो झूठ बोलता है जोजी, जिस तरह से झूठ बोलता है, जिस तरह से एक्ट करता है दिखाने का कि वो इनोसेंट है, तो वो बहुत अच्छे से निभा रखा है। एक्टिंग काफ़ी अच्छी है उनकी, और मतलब काफ़ी मज़ा आता है उन्हें स्क्रीन पे देखने में ना। लास्ट में जब खुद पे गोली मारने से पहले उसने अपने भाई को बता दिया कि मैंने अपने भाई और पापा को मार दिया। तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हाँ वहाँ हैरानी हुई मुझे, वहाँ पे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ, कि मतलब लालच भी दे रहा था और ब्लैकमेल भी कर रहा था। तुम्हारी बीवी भी अभी जिंदा है, इस तरह से बोल रहा था ना। नहीं, वो ये कह रहा था कि जो मैंने पापा को मारा है उसमें तुम्हारी वाइफ भी शामिल है, और मैं पुलिस को बता दूंगा, ऐसा कुछ कह रहा था शायद। तो वो उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था और उसे लालच भी दे रहा था। और फिर जब वो नहीं माना तब उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, सुसाइड करना, नहीं तो जेल जाना ही था उसने। फिर वो लास्ट में पैरालाइज हो गया। मतलब कोशिश तो उसने यही की थी कि मैं मर जाऊं, पर ये था कि वो उसी कंडीशन में पहुंच गया जिस कंडीशन में उसके पापा पहुंचे थे। तो ऐसे में तो उसके बाद उसकी कोई भी केयर नहीं करेगा। वही है ना, उसका जो कर्मा है वो दिखा रखा है कि उसका किस तरह से उसका लालच, कर्मा ही एक तरह से लालच ही था उसका। हाँ, लालच था। हाँ, मेन उसके लालच नहीं उसको क्रिमिनल बना दिया। हाँ, क्योंकि वो चाहता था मैं बिल्कुल अलग रहूँ, मैं मतलब सारे एक तरह से मतलब किसी की बंदिश ना हो उस पर। हाँ, इस तरह से तब उसने पहले अपने पापा को मारा, फिर जब फंस गया था उसके बाद अपने भाई को। तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे फिल्म। और वैसे जोसेफ का कैरेक्टर एक पादरी का था इसमें। बाकी ऐसे कुछ कॉमेडी तो थी नहीं फिल्म में, बिल्कुल सीरियस क्राइम थ्रिलर फिल्म है ये। बिल्कुल टोन भी वैसे ही चली थी, बाद में चढ़ने लगी टोन। शुरुआत में तो सिंपल चल रहा था, एक घर की कहानी जैसी। और जिस लोकेशन में इस फिल्म को शूट किया गया था बहुत अच्छी लोकेशन है, वो काफ़ी खूबसूरत जगह थी। घर बहुत अच्छा था, वहाँ की जो लोकेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, और जो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो भी बहुत अमेजिंग था। फिल्म जिस तरह की है उस हिसाब से जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो बहुत अच्छा लग रहा था ना इस फिल्म में। तो मतलब काफ़ी अच्छी फिल्म है। एक्टिंग सबकी कमाल की है। नॉर्मल मतलब बिल्कुल रियल लगता है। हाँ, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। ओवरऑल फिल्म आप खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ. थैंक्स सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.